કરતું. આગળ વધીએ. લેટન્ટ વ્યૂ એનાલિટિક્સના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયા છે, જે નવું લિસ્ટિંગ થતા દેખાયા. ત્યારબાદ ડિસ્કશન કરશે આપણી સાથે કંપનીના સીईओ राजन सेतुरमन અને સાથે જ કંપનીના सीएफओ राजन वेंकटेशन. सेतुरमन जी, आपसे शुरुआत करना चाह रही थी मैं. इस फंड का यूसेज कैसे होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉम्बिनेशन है, एक ओएफएस है और साथ ही बाकी के जो एक्विजिशन के लिए आप यूसेज करने वाले, लेकिन आप मुझे एक आइडिया दे पाए किस तरीके से वर्कआउट होगा, कितना बाइफिकेशन कौन से पर्पसेस में जाएगा? Yeah, there are three points that we have made as part of the prospectus. A big chunk of it is really towards inorganic opportunities that we want to pursue. There is a lot of action happening in this space. Over 900 M&A transactions in the last 18 months, and there are several young, nimble companies that are coming up with very interesting products and solutions and IP. So we would be looking at opportunities that are available, which are aligned to the industries and the geographic markets and the type of work that we are already pursuing, and where we can actually increase the pace at which we are able to penetrate that space. So that's a pretty important part of the IPO proceeds. We also see that the markets where we are already present, there is a great deal of momentum. So we are adding in terms of the sales and business development and the marketing bandwidth, as well as in terms of the capability and the expertise, right, that we can bring to the table. So we are making investments ahead of the curve in hiring people, right, for sales, business development and capability building. So that's another important chunk. And the third is just specifically in relation to the European geography. We believe that we are currently underpenetrated in the European markets. The three countries in which we have subsidiaries, the UK, Germany and Netherlands, they account for over 70 out of the Fortune 500 companies. And today we are working only with 2 or 3 of them. And therefore we believe that we need to further accelerate the momentum in those geographies. So we'll be using a part of the proceeds to capitalize our European subsidiaries so that we can pursue aggressive growth in those markets. So broadly, those are the 3 main objectives of the IPO. अच्छा वेंकटेशन जी, आपसे एक आइडिया, मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है? क्योंकि ये पूछने का मेरा सबसे बड़ा रीजन भी यही है, कंपैरेबल कोई भी कंपनीज नहीं है. प्रोजेक्शंस की अगर बात कर ले, पिछले हिस्टोरिकल कुछ रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम के नंबर्स को देखते हुए नेक्स्ट 1 to 2 इयर्स यहाँ से आप किस तरीके से देख रहे हैं? तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने. तो कई लोग हमसे ये सवाल पूछ रहे थे कि क्यों हम अब आईपीओ कर रहे हैं, क्यों इस टाइम पे आईपीओ कर रहे हैं. तो इसका अब मेन रीजन देखेंगे, क्योंकि हमको ऐसे लगता है कि जो हमारा बिजनेस है आज की डेट पे, इट इज एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट. वी बिलीव दैट with the explosion of digital, which was further accelerated by the pandemic, the opportunities for data analytics are going to significantly go through the roof over time. तो इस टाइम पे हमको ये सही लगा कि हम आईपीओ करें, अपने आप को कैपिटलाइज करें, सो दैट वी कैन चेज द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दैट आर इन फ्रंट ऑफ अस. जहां तक कि आप मार्केट की साइज की बात करें, हिस्टोरिक आप हमारा डीआरएचपी पढ़ेंगे तो क्लोज टू अबाउट $170 बिलियन बताया जा रहा है आज की डेट पे ये मार्केट साइज. आगे जाके ये $330 बिलियन होने वाला है बाय 2024. हम हालांकि विद इन द ओवरऑल मार्केट we work or where we operate today is in a very niche and a very high end जो बोल सकते हैं, we solve fuzzy business problems. तो हमारा जो काम है आप देखेंगे, it's more in the nature of consulting. आप हमारा historical growth track record देखेंगे तो FY10 से लेके आप अगर FY20 का टाइम देखेंगे, हमारा बिजनेस 45% कैगर के बेसिस पे ग्रो हुआ है. हम इनफैक्ट डेलॉइट फास्ट 50 टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में हम ऑलमोस्ट क्लोज टू अबाउट 9 टाइम्स हम फीचर हुए हैं उसमें. आप लास्ट FY15 से लेके FY20 तक का ग्रोथ रेट देखेंगे तो वहां पे भी क्लोज टू अबाउट 18% कैगर हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है. FY21 हैड सम इम्पैक्ट ऑफ कोविड स्पेशली. आप अगर देखेंगे Q1 और Q2 में थोड़ा सा डिमांड जो है हमारे, इवन दो हमारे क्लाइंट्स काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, उन लोगों ने भी अपना थोड़ा सा पॉज बटन दबाया था ऑन न्यूअर इनिशिएटिव्स एंड न्यूअर डील्स. बट Q3 और Q4 लास्ट साल से आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम रहा है. इनफैक्ट करंट ईयर में भी आप देखेंगे कंपेयर टू लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर का नंबर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ हमने रजिस्टर किया है. तो ये जो ट्रेंड है हम जो देख रहे हैं और ये जो स्ट्रांग मोमेंटम है ये सस्टेन होने वाला है, हमारा ये यकीन है. इस साल तो ऑलरेडी हमारा ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है.
पाइपलाइन भी काफ़ी स्ट्रांग है, न्यू क्लाइंट एक्विजिशंस काफ़ी स्ट्रांग है। तो आगे जाके हमको ये लगता है ये मोमेंटम सस्टेन होगा और हम बहुत ही एक्साइटेड हैं फ्यूचर को लेके। अग्रीड सर। अच्छा वेंकट जी, आपसे एक आइडिया, एक लेमन टर्म से मुझे आप अगर बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन कर पाए, और साथ ही किस तरीके के मार्जिन्स लोग यहाँ से पे करने के लिए अग्री कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी नई फील्ड है। 15 to 17% कैगर ग्रोथ ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सारे एनालिस्ट, और आपने तो जो आंकड़े मुझे बताए उससे भी काफी बेहतरीन है। एक इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस काइंड ऑफ सिनारियो, ग्लोबल सेटअप ऑलरेडी देख रहे हैं हम लोग, इंडिया के अंदर ये रेशियो किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है? आप हमारे नंबर्स देखेंगे, आप हमारे फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे, लास्ट 3 साल के ही नहीं, आप पिछले 10 साल के नंबर्स उठा के देख लीजिए। हम हमेशा प्रॉफिटेबल बिजनेस रहे हैं, हमने हमेशा अच्छे हेल्दी मार्जिन जनरेट किए हैं, हमेशा हमारे कैश फ्लोज हेल्दी रहे हैं। तो ये जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स है जो आप देख रहे हैं, ये कॉन्शियस बिजनेस चॉइसेस की वजह से है। हम आप देखेंगे हम द लार्जेस्ट फॉर्च्यून 500 कंपनी के साथ काम करते हैं, जो जिस तरीके का काम करते हैं, हम बहुत ही हाई एंड प्रीमियम कंसल्टिंग काम करते हैं, जिसमें प्राइसिंग जो है ज़्यादा प्रेशर के अंदर नहीं है। तो ये सब रीजंस हैं हमारे बेटर मार्जिन प्रोफाइल जनरेट करने के। 25 से 28% के बीच में हमने हिस्टोरिकली आप देखेंगे हमारा रेंज रहा है, इस रेंज में हमने एबिटा मार्जिन जनरेट किए हैं। FY21 में आप देखेंगे बहुत ही एक्सेप्शनल साल रहा है हमारा। इसके कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस हैं। एक रीजन है कि थोड़ा सा हमको बेनिफिट हुआ कम खर्चे होने का, जो ट्रैवल और मार्केटिंग कॉस्ट, बट मेन रीजन आप देखेंगे तो हमने बहुत ही हमने एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट अचीव किया है इन द वे वी डिलीवर आवर वर्क, जहाँ पे हमने हायर पोर्शन ऑफ आवर वर्क हमने ऑफशोर लोकेशन जो हमारे चेन्नई और बैंगलोर में ऑफिसेस हैं, यहाँ पे हमने जो मैनेज सर्विसेज मॉडल है इसके थ्रू हमने काम डिलीवर किया है, जिसमें हमारा मार्जिन प्रोफाइल जो है काफ़ी बेहतर रहा है। तो ये जो चीज़ है हमको लगता है ये ट्रेंड जो है आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा। ऑफ कोर्स पैंडेमिक जो है अभी आप देखेंगे थोड़ा सा घट रहा है, ट्रैवल भी वापस आ रहा है, जैसे यूएस ने खोल दिया वापस ट्रैवल, यू कैन एक्चुअली ट्रैवल बैक टू द यूएस। सो ये देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्लाइंट्स जो हैं their acceptance for offshore work in going forward, will they expect some of these people to go back and deliver work from on-site locations? तो ये चीज़ देखना पड़ेगा। बट जो हमने हिस्टोरिकली जनरेट किया 25 से 28% के एबिटा मार्जिन, ये बहुत ही कंफर्टेबल लेवल ऑफ मार्जिन हैं। हमको ये लगता है कि ये चीज़ हम आगे जाके भी मेंटेन कर पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा हम मार्जिन जनरेट करते हैं बिजनेस में तो हम इसको वापस री इन्वेस्ट करेंगे टू ड्राइव आर सेल्स ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। तो ये प्लान है हमारा आगे जाके। अग्रीड सर। अच्छा सेतुरामन जी, आपकी तरफ से एक आइडिया, लास्ट चीज, क्योंकि ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, आप मुझे बता रहे थे, एक जियोग्राफिकल ब्रेकअप अगर मुझे आप दे पाए परफॉर्मेंसेस के रिलेटेड, यूएस में किस तरीके से शेप अप हो रहा है, और चूंकि यूरोप में तो ऑलरेडी हम लोग केसेस स्पाइक अप होते हुए भी देख रहे हैं, किस तरीके से वो वर्कआउट हो रहा है? So US is coming back very strong. I think the concerns in relation to a third, fourth wave are more Europe oriented and not so much in the US geography and the markets. As Raj pointed out, we already have clients opening up for meetings, some travel happening. Some of our employees and alumni were able to come down today, right? For example, for the listing ceremony. I and Raj are traveling to the US this weekend to meet up with clients and other people. So we believe that the US market is coming back on track. Plus, in any case, the US market, there has been a very high degree of acceptance of remote interaction and remote working, right? Whether it is business development or the actual delivery of services. So we feel fairly comfortable about what is happening in the US market. Of course, one can never put a finger on whether there will never be another third wave or fourth wave, but I believe that most people now understand the dynamics of this stuff. And at least from an organizational work perspective, the models are starting to fall in place. Europe, on the other hand, I'm sure that you would have heard, I think the pandemic-related numbers have started going up, even in the 3 geographies that we talked about, UK, Netherlands, and Germany. So there is a little bit of that apprehension as far as Europe is concerned. But in the last 6 months, in the last 8 months, there has again been a significant increase in the momentum in terms of conversations that we have been having with European clients. We see a lot of interest in relation to supply chain, data engineering, right, that type of work. And we are currently in discussions with a fairly large number of new accounts as well, right, which have expressed an interest to accelerate their own digital transformation initiatives. Now, of course, we'll have to wait and
see how the pandemic plays out and whether there'll be any spokes in the wheel. But I think in general, people are getting more innovative. They are figuring out ways by which, right, they can tackle any kind of challenges that might be thrown by the pandemic. Remote models are getting increasingly accepted in Europe as well. So we feel that while there might be some blips on the radar, we believe that in general, the momentum is here to sustain, and we feel fairly confident about that.